good afternoon, all of you. So, we are here for a very important webinar on cybersecurity. Cyber crimes are increasing as we go digital, and with the initiative of Sri Aurobindo College of Commerce and Management, Principal Sir Dr. Ajay Sharma and SACCM Alumni Association, we are organizing this webinar on cyber security and data protection. And we have a very eminent expert on the topic today with us who is going to enlighten us about these things, how to be secure, how to make our businesses, our private lives secure in this digital era. So I'd like to introduce Dr. Arun Soni, sir. He's an internationally acclaimed author and cybersecurity expert from Chandigarh who has authored more than 150 books on computer education for schools and cybersecurity. His books are widely read in India and abroad by millions of students. He has 17 years of experience in writing and 23 years of working in field of computer education. He has the distinction of having his name entered in the Limca Book of Records under the category Most Computer Books written at the age of 37. He also holds many other national and international records. He is also a certified ethical hacker from EC Council US and a cybersecurity consultant who is working for the cause of spreading awareness about cybersecurity by conducting workshops, seminars on cybercrimes, online security, and information protection. He has conducted these webinars in numerous schools, colleges, and organizations. For his contribution in the field of computer education and cybersecurity, he has been admired and covered by many major news portals, magazines, newspapers such as the Indian Express, the Tribune, Dainik Bhaskar, Yahoo News, Economic Times, Business Standard, Rediff.com, and many other publications. He has also appeared as an expert commentator on several nationwide TV channels as well. So, Dr. Arun Soni, sir, over to you, sir. Good afternoon, and thanks for introducing me, and very warm welcome to this webinar on cybersecurity and data protection. As you know that these days we are always connected to the internet, whether we are working from home or learning from home, we are always connected. And due to this, cybercrime has risen about 500% times in last few months. So this is a serious thing, and what I tell you is that it is not difficult to protect ourselves or our devices online. It's just because we don't know how to do things. This is happening. I will narrate an incident. Only 2 or 3 days back, I think I was conducting a webinar, and the presenter, she asked me that why this cyber crime against women is on rise. So much, it has risen so much, about 60% in the last few months. So I just asked her which sites to use for shopping. She said, okay, Amazon.in, Flipkart, and 3 or 4 more sites, she told me. Then I asked her, let's suppose that you, after 2 hours, you will see your mocked photographs on a website. What will you do? What will be your action? And where will you report it? She had no answer. If you don't know the basic things, importance of digital evidence, or how to report a cybercrime, how do you supposed to protect yourself? So this is the main reason. Basically, we don't know how to do the things. Right now, like when I will explain you the things, you will see yourself how simple it is to protect yourself online and your devices on which are connected online. So I think I won't waste much time, and I will start with my this PPT. First, I will take you to a journey in the world of cybercrime. Then we will talk of cybersecurity. So I hope my screen is visible and I am audible to everybody, right? Yes, sir. You're visible and audible. Okay, okay. So you can just go to the headlines because we won't be having time to go through all. WhatsApp hacked. 100. This it was only 15 days back, or I think 20 days back. You know, into late 2019, WhatsApp had a vulnerability that it can be hacked just with a missed call, because it had a vulnerability of
we say stack overflow. Stack overflow is just you pour the water in a glass, and if you pour more than its capacity, it will come out. And if it comes out, then you can mix anything with that water. So similarly, stack overflow is when memory overflows, then you can execute any exploit in that. Till 2019 date, now it has been patched up, but this is not acceptable. So same thing is happening to every social media platform. Twitter has been hacked twice. WhatsApp is very common. It's, I think, after every 6 months it gets hacked, and so many other things are happening. So you need to secure, know how to secure yourself. We can't depend on WhatsApp or other messaging apps or social media platform to protect us. I have a complete section on this. There's so many cases. Milka Singh's wife duped online. She just wanted to register her pet, and she got hacked. Her account got hacked, and she lost, I think, around some 50,000 rupees. This is my favorite. I will explain it later. I also have a story about this. So at last, someone was caught also. And these are the latest 2 days back. We are using Google Pay, Phone Pay, Bheem, Paytm, but we don't know how the basic steps to protect ourselves in the UPI apps. And this is very important. We think that when we download an app from Play Store, we are safe. Okay, you are relatively safe. But now this Play Store has become an epicenter of malicious apps. It is not protecting ourselves anymore from the malicious apps. This is not my words, but this is a certified newspaper advertisement. So it has become our responsibility now. To protect your digital identity is your responsibility. Okay, these are a few slides about myself. I'll just quickly go through these. I was actually first to introduce this cybercrime and cybersecurity tips and issues in school books. This was on the event of press conference when my book on cybersecurity, Digital Cop, was launched. That was way back in 2015. There are some workshops and webinars which I had conducted. This is in St. Bede, Shimla. These are for teachers in Solan. This was recently done. This again recently done. This I did for army personnel. One was that is Art Track Shimla, another was from Ahmednagar, Maharashtra. Let's start. Hacker. Actually, when we think of hacker, we think of something great, someone with bad intentions. But hackers used to be good people. They were very helpful. They had extra knowledge. Like my laptop right now is capable of
running on speed of 3.2 gigahertz. But with my extra knowledge, I can make it run on speed of 5.2 gigahertz. This is my extra knowledge. This is my research. It doesn't make me a hacker. It doesn't make me a bad person. But there was one more category of people cracker. They used to bypass security, crack the passwords, access the data without permission, do all sort of unauthorized things. And due to wrong publicity of media, hackers and crackers became a single entity. लोगों ने क्रैकर्स को भी हैकर कहना शुरू कर दिया. Now hackers had to do something to protect their identity. So what they did was they divided themselves into two categories: black hat hackers and white hat hackers. Black hat hackers are actually crackers, and white hat hackers are professionals. I'll just keep the camera off for the panel is gone. And white hat hackers are professionals, ethical hackers. There are certifications for that. Like I have certification of CE, certified ethical hackers. There are many other certifications if you want to go for that professions. OSCP is there, and many more are there. So they are hired by companies to find the loops in the infrastructure so that before a black hat hackers or a cracker takes advantage of that, that can be patched up. And you think there are two types of hackers only? They are suicide hackers. They don't worry about the consequences. They just do the hacking for the thrill of hacking or for the hacktism. And they are state-sponsored hackers. They are hired by governments. Maybe the China government is having hackers to spy on other countries. India might be having also to spy on other countries. So I will be asking a few questions in between and answering it also myself. This is script kiddies. Script kiddies are basically, they are not hackers, but they use tools developed by actual hackers. Now the cybercrime. Why cybercrime is rising so much? This is the first question. Because it can be done remotely. Let us suppose that I have to come to your house to get cash from your Almira, which is in your bedroom. That is very difficult for me. You might be having sensors, watchdog, watchman, and many other devices and gadgets. Why should I take so much risk? But I can easily compromise or hack your credit card or debit card just sitting at my room or maybe on a beach or from a mall. I can conveniently hack your credit card, debit card. That's why cybercrime is rising so much, because it can be done remotely. And it can happen anytime, maybe at the night or maybe on the day. There are many types of cybercrime, but I will be discussing a few ones which are more relevant these days. Hacking is a direct type of cybercrime, just accessing the breaking the password and then accessing the data. It can be done two ways. One is tools, other is social engineering. Tools is basically like, let us suppose that you go to a cyber cafe to a public computer. You enter your Facebook credentials, login and password, and there is some software which is keystroke recording software that records your username and password. So that is hacking through tools. Other is social engineering. This is very important because I think social engineering forms the basis of all type of cybercrime. Let us suppose that your neighbor comes to you and tells you, okay, my Wi-Fi is not working. You please give me password of your Wi-Fi. I just need to send an urgent email. So I just need it for 15 minutes. You give the password, then you forget that you have given the password, and he keeps using your Wi-Fi for misusing or misusing it. You don't know. He used social engineering to get the password. Your neighbor comes to your child. He tells him that, okay, look, I have bought a new mobile phone, smartphone,
and it has uh, 8 GB of RAM and it runs very fast to connect it to your Wi-Fi and play the game. You see how smooth it is. So your child takes the smartphone, connects the smartphone to his Wi-Fi, and then plays the game and returns the smartphone. But what happened in between was your Wi-Fi password was saved in that mobile phone. Now the person, your neighbor, can connect to your Wi-Fi anytime. He used social engineering to get the password of your Wi-Fi. In social engineering forms the basis of all types of hacking. As I will progress, you will realize that I'm right that everywhere you will see that social engineering is being used. You know, as ethical hacker, as penetration tester, we have to test the infrastructure. Okay, that's okay. There is no open port or there is no misconfiguration, but we also have to test the people there, that how competent they are. We use social engineering to get the sensitive data from them, their login details or the sensitive files. So that is also a part of penetration testing. Social engineering is also a type of hacking, which is basically taking advantage of goodness of people. So next, say cyberbullying and stalking. I have a complete section on that later on. Identity theft. Identity theft is basically compromising credit card, debit cards, and using it. And this cybercrime is directly linked to phishing. You must be aware that phishing is basically there are phishing pages which are duplicates of original web pages. You will, when you open Facebook, you see that it's a Facebook page, but actually it is a duplicate of Facebook. When you will enter your login and password, it will go to some third party. And the procedure to create such pages is such that it's just like taking a picture of something, a snapshot of something. There will not be any difference, not a dot here or there. The only difference will be in the URL, in the web address. You see that it's facebook.com, because no two URLs can be same in the world. So hackers try to make that URL look as closer to the original web page as possible. Or it could be faceb00k.com. And we casually look at the URL of the web address and then we enter the credentials. Now, if you are using HDFC net banking, you must be knowing that first you need to access your net banking account. First you need to enter the customer ID. Then you click on continue, and then you will be shown a password field where you need to enter the password. Okay. And this customer ID is also printed on the statement, paper statement, which comes to your house. So we normally tear it off and throw in the dustbin. And if somebody fix that statement, gets your customer ID, he will enter the customer ID in the net banking account. Okay. He will click on continue. He doesn't know the password. Perfectly okay. But if he enters the wrong password 3 or 4 times, your account will get blocked. And then you will be running around. So hacking is just not getting the key for a lock. It is also like hammering a lock so much that even the original owner cannot open it. You need to be very careful what you throw in your dustbin, because this is called dumpster diving. When we are not careful over documents, the ATM slips, the photocopies of PAN card, photocopies of Russian card, Aadhaar card, we just throw it in the dustbin. And those can be misused in many ways. Somebody can rent an apartment, somebody can get a loan approved on that, somebody I mean just so somebody get a same got issued on that. There are so many things which can be done.
So you need to be very careful what you throw in your dustbin. You need to tear it off properly, shred it, and then throw it. Be careful about that because everything is linked now. So with your Aadhaar card, your everything is linked. With your mobile phone, your everything is linked. Email spoofing. You can read it. It's simple. In spoofed email, basically it will seem like it has come from WHO, and it will be containing a link also. So when you will click on the link, some malware will get installed on your computer or your smartphone. And it has a generic greeting, request for personal information, a threat. Whenever there is some spoofed email, there will be a threat. Your account will get blocked, your ATM card will get blocked, get the KYC of the Paytm done, otherwise account will get closed. And because of that fear, people react. They click on the link given, and that gets the damage done. Okay, you will get the pizza voucher when you click on this. But when you will click on that pizza voucher, then some spyware or some malicious software will get installed in computer. So you need to be very sure that from where that email has come. I will tell you the ways. And the most important is fifth one. I will tell you how to do it. I already opened my email here. Okay, this is my email. I will go to my inbox. So what I need to do is I just need to take my pointer, and you can see that email. Okay, that is from this domain nimbus.me. This is okay. Sir, your SPF. email is not visible. Yes, sir. Your Screen is email not is visible. visible, sir. No sir, screen is visible, but आपने अभी email open की है ना? ईमेल ओपन ही किया सर, मैं पॉइंटर लेके गया हूँ ईमेल पे. नहीं सर, वो आपकी PPT दिख रही है हमें. ओके ओके ओके. Can you see it now, sir? Just a minute. I will. I think I need to change the tab. The screen should be visible. Again, only PPT is visible. Yes sir. I opened my email and I'm sharing my screen, and screen sharing is visible. Okay, anyway, I will show it later, and I'll continue with this. Okay, okay sir. Yeah. So, and which antivirus do you use? This is very important because we get antivirus for our laptops, our PCs, but we do not get it from our phones, smartphone, and that is very essential. And I showed in the previous slide that 65% of malicious apps are now being downloaded from the Apple Play Store. So where is the protection? So you need to have an antivirus.
on your smartphone also. And these antivirus are very cheap, maybe 200 rupees. I just got Bitdefender for 195 for my laptop for a year. And same is for the mobile phone. So please do buy a legitimate antivirus, not free, no trial. Just pay for the antivirus and get that. I use Kaspersky. Kaspersky is a very good antivirus. Sophos is good. Bitdefender is good. You can search yourself in Google best top 10 antiviruses in 2020. You will get the list. Choose anyone from the first 5. And this is again, you can see that this is a spoofed email. This is not from Amazon. This is from Amazon. A is missing. And there is generic greeting. And this is a link. When you hover your pointer, bring your pointer over the link, then it will show you the actual address from where it has come. This actually I wanted to show you. So always take the pointer over the link and you will see the actual address. Pointer might be showing you, sorry, the text could be showing you WHO, but when you will take the pointer, it will show you the exact address from where it will lead you when you will click on that. Malicious software. There are so many types of malicious software. Virus, okay, I will discuss spyware. Spyware is means it collects whatever you do on your computer, it collects as information. Maybe the screenshots of your website which you're opening or whatever you're chatting, whatever you're doing, it is collecting. Trojan is basically a software which looks like a legitimate software. You will download a movie or you will download a song will play, movie will play, but at the back end that software is, that movie or that song is binded with some spyware or virus that will also get installed on your computer. And there is remote access Trojan, which will create a backdoor. I mean that person can now access your computer or your smartphone anytime he wants. That is remote access Trojan. There is also remote access tools like AnyDesk, TeamViewer. Those are remote access tools. Okay, these can also be misused. I will be coming to that when we'll be discussing the UPI apps, how those can be misused. And these Trojans are very deadly. I will share an incident. First, you read this. This is an actual incident. The webcam of that girl was hacked. Her videos and her pictures were captured through her webcam, and then she was blackmailed. This is becoming very common these days. I came to know an incident that is in Mumbai. There was one news reporter. She was staying in one single room, and she was news reporter. तो उसमें अपना एक सर्वे करना था on online relationships. तो उसमें वो अपना जो भी ब्लॉग में पोस्ट किया कि I want to do this survey and requested the viewers to send the emails what they think about this topic. उसको बहुत सारी emails आई, attachments आई, ठीक है, उसने attachments डाउनलोड की, emails पढ़ी, रिपोर्ट तैयार कर ली, that news report, that things got over. उसके 1 साल के बाद accidentally her friend found out that her video was being live streamed on live webcam websites. लाइव वेबकैम वेबसाइट्स वो होती हैं जहाँ पे हिडन कैम से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है, एंड पीपल पे टू सी दैट कंटेंट्स. एंड शी वाज स्टेइंग इन अ सिंगल रूम. उसमें लैपटॉप रखा हुआ था, उसी में सारे काम होते थे. शी आल्सो हैड अ बॉयफ्रेंड. और 1 साल पूरा उसका जो है वो दैट लाइव होल एक्टिविटीज, द बेडरूम कंप्लीट
bedroom and activities got live streamed on the live webcam sites. और जब 1 साल के बाद पता चला she tried to commit the suicide. कैसे होता सारा कुछ? Because she must have clicked जो अटैचमेंट उसने उस टाइम डाउनलोड की थी, जो ईमेल उसको आई थी, उसके थ्रू she might not be having an antivirus on her laptop. These things are becoming very common these days. तो एक तो अपना लैपटॉप जब भी आप यूज नहीं कर रहे हो उसका लेड जो है बंद करके रखो, उसके वेबकैम जो है उसके ऊपर आजकल वो शटर्स मिलते हैं, तो उससे उसको क्लोज करके रखो. अदरवाइज एक ब्लैक जो है टेप वो उसके ऊपर लगा दो आप, बट इट शुड नॉट बी ओपन ऑल द टाइम. आपका स्मार्टफोन है, इसका वेबकैम होता है, सॉरी कैमरा उसका होता है, फ्रंट कैमरा, रिवर्स कैमरा, उसके लिए एक ऐप आती है कैमरालेस, यू कैन नोट इट डाउन. वो आपके जो कैमरा है आपका स्मार्टफोन का उसको ब्लॉक कर देगी. whenever somebody will try to activate it will show the message that it has been blocked. उसके बाद आप उसको अनब्लॉक करोगे, आप भी उसको तभी यूज कर पाओगे. so be careful with your cameras. Webjacking is basically like hijacking of a website. उसका कंट्रोल अपने आप किसी और ने ले लिया. ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं. नॉर्मली ये 26 जनवरी या 15 जन के आसपास होता है. पाकिस्तान वाले इंडिया की वेबसाइट हैक कर ली, इंडिया वालों ने पाकिस्तान की कर ली. ओके, now this whole game of cyber crime and cyber security revolves around one thing, IP address. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ IP address को. We won't go very technical. IP address is like a registration plate of a car. अब सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है, कार हिट करके चली जाती है, हाउ डू वी ट्रैक दैट कार? फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन नंबर. सेम थिंग हैपेंस विद यू. Whenever you get connected to the internet, you get assigned a special number that is called IP address, that is unique throughout the world. And whenever somebody or cybercrime police has to track a cybercrime criminal, what he tries to find is the IP address. अगर IP address मिल गया तो सारा कुछ मिल गया. आप इसको रीड कर सकते हैं कि कैसे कंसिस्ट होता है. 4 number, each consists of 3 digits from 1 to 255. एक बार इसको आप रीड कर लीजिए. You can see that IP address is embedded in all emails. Reveal the origin of the email. Now अपना IP address आपको फाइंड करना आना चाहिए. आपका अपना IP address क्या है? There are many sites, but the first one I prefer what is my ipaddress.com. गूगल में आप टाइप कर लोगे what is my IP address तो भी आपको IP address अपना मिल जाएगा. But let us go to the what is my ipaddress.com. सिर्फ आपने टाइप करना है इसको और कुछ नहीं करना है, और it will show you your IP address. आप देख सकते हो कि this is my IP address 122 point जो भी है. I am using Airtel. I am from चंडीगढ़. अब बाकी की डिटेल्स, मेरा हाउस एड्रेस है वो आपको नहीं मिलेगा. वो कहाँ पे है? वो एयरटेल वालों के पास है. दे हैव सेकंड टू सेकंड डिटेल कि इस टाइम ये IP एड्रेस किस हाउस को असाइन था. दैट्स इट. अगर IP एड्रेस मिल गया तो साइबर सेल ऑफिशियल दे विल गो टू द एयरटेल and tell me that this IP address, details of this IP address. तो बता देगा कि इस टाइम जब ये साइबर क्राइम हुआ ये IP address इस हाउस नंबर को साइंड था या इस पर्सन को साइंड था. That's it.
और ये एयरटेल वाले या सर्विस प्रोवाइडर हमें नहीं देते हैं, ये सिर्फ साइबर सेल वालों की को ही वो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स, बाकी की जो है कि आईपी एड्रेस किसको बिलोंग करता है। अगर आपको किसी का आईपी एड्रेस मिल जाता है, उसकी डिटेल्स लेनी है, आईपी लुकअप के ऊपर क्लिक कीजिए, यू विल गेट ए बॉक्स, एंटर द नंबर एंड यू विल गेट द डिटेल्स। ये देखो, ये दिस इज द पर्सन इज फ्रॉम, इसका आईएसपी जो है दिस इज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्टेट रीजन इज न्यूयॉर्क। So you should know how to find your IP address, and if you get someone's IP address, how to track the person कि वो कहाँ का है। अब जब हम IP address की बात करते हैं, we normally talk about public IP address, but there are private IP addresses also. Private IP address basically, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, like you have a network in your school और college, उसमें सभी आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दे कम्युनिकेट थ्रू प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। इनकी भी रेंज होती है, लाइक 192.168.1.0। सो व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, द LAN लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका एजेंडा है कि डिफॉल्ट पासवर्ड वल्नरेबिलिटी, ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सब मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है हैकिंग की, जो कि घरों में, सबके घर में होती है, 90% के घर में होती है ये वाली, और ये बढ़ती जा रही है बिकॉज वी आर नाउ इंस्टॉलिंग IoT डिवाइसेस। हमारा सब कुछ लाइट्स, एलेक्सा जो है कंट्रोल होती हैं, अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल होती हैं, एलेक्सा इज देयर एंड वी हैव स्मार्ट होम्स नाउ where all the geysers, smart fridge is there, that smart TV is there, उसमें माइक भी लगा हुआ है, उसमें कैमरा भी लगा हुआ है। So all are interconnected now, और ये सब जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो दे आर गिवन यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड्स आर देयर। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपका जो राउटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आपको मिल रहा है और सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, दैट राउटर, दैट इज बेसिकली मॉडर्न कम राउटर, बट यू से इट राउटर। तो उसका 2 आईपी एड्रेस होते हैं बेसिकली डिफॉल्ट, एक तो 0.0.1, 1.1। इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना विंडोज में, एंड देन यू विल टाइप ipconfig, when you will see the default gateway, this default gateway is the IP address of your router. It could be 0.1 or 0.0। तो आपने क्या करना है, अपने सिर्फ एड्रेस बार में जहां पे आप टाइप करते हो www.google.com, वहां पे अपने राउटर का IP एड्रेस अपने एंटर कर देना है, दैट्स ऑल, एंड यू विल गेट a panel for the to access the settings of your router। और इसके डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं एडमिन और एडमिन पासवर्ड। आप पहले एडमिन एंटर करके देखो, फिर एडमिन पासवर्ड एंटर करके देखो। अगर तो ये मैसेज मिलता है, इट मीन्स यू आर सेफ। और अगर आपका पैनल खुल जाता है, इट मीन्स यू कैन गेट हैक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं से भी कोई आपका network, I'm not saying one particular computer, the whole network which is connected to that particular router can be hacked। उसके webcam तो क्या जो भी कुछ है सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन पहले आई शिफ्टेड टू एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड। नॉर्मल मेरे पास पहले कॉपर वाला था, बट नाउ दे सेड वी हैव दिस ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड एक्सट्रीम। तो मेरे घर आया, राउटर चेंज कर गया, राउटर वाज परफेक्टली ओके, नोकिया का राउटर है, डबल एंटीना है, एवरीथिंग ओके। जब वो जा रहा था तो मैंने उसको पूछा टेक्निकल पर्सन को, भाई मेरे को इसका राउटर का पासवर्ड और यूजर नेम तो बता दे, अगर मैंने सेटिंग्स इसके अंदर चेंज करनी है, अपना पासवर्ड चेंज करना है। एंड ही सेड एडमिन। आई वाज शॉक्ड,
आप कितने घरों में ईच एंड एवरी हाउस जहां पे एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड इंस्टॉल हो रहा है, सभी के घर में ये वल्नरेबिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है। एडमिन इज लाइक जस्ट हैविंग ए टाइम बॉम्ब योर इन हाउस। ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, बिकॉज देयर आर सर्च टूल्स। वो आगे एथिकल हैकिंग में चले जाते हैं, हम एक्चुअली उसमें ज़्यादा नहीं हम जाएंगे। देयर आर सर्च इंजन्स जो कि इस तरह के राउटर्स को ट्रैक करते हैं, उनके पास पूरी डिटेल होती है। या रैंडमली देयर आर स्कैनर्स, आईपी स्कैनर्स। मैं रैंडमली अगर डालता हूँ 122.168.12 122.168.255, इस सभी को स्कैन करो, वो सभी को स्कैन करके बताएगा कि ओके दीज आर द लाइव राउटर्स। ये सारे राउटर्स जो हैं अवेलेबल है आपके हैकिंग के लिए। आप किसी पे भी क्लिक करोगे उसका एडमिन पैनल खुल जाएगा राउटर का। अगर तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड चेंज नहीं हुए, वो एडमिन और एडमिन पासवर्ड ही है, इट मींस आई कैन हैक इट। वो चाहे वियतनाम का राउटर है, चाहे वो यूएसए का राउटर है, चाहे यूपी का राउटर है। राउटर हैक हो गया मतलब कि आपका पूरा नेटवर्क हैक हो गया। तो दिस इज वेरी सीरियस। आपने ये करके देखना है अपने घर में कि आपका जो है वो सेफ है कि नहीं है। आपको अपने राउटर का यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। आपको कभी भी पासवर्ड भी चेंज करना पड़ सकता है अपना वाईफाई का। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो आपके राउटर का यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है, जो राउटर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और एक आपके वाईफाई का पासवर्ड है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी सर। Sir, your mic is muted. Arun sir? संजय सर शायद सर दूसरी कॉल पे हैं। Okay, I think now I'm audible. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, IP lookup. Now something interesting. These are two very useful apps. One is network scanner and other is Ping. कई बार लगता है कि हमारा वाईफाई स्लो हो गया है या कुछ अनऑथराइज्ड पर्सन जो है इसको यूज कर रहे हैं, उन्होंने हैक कर लिया विदाउट आवर परमिशन। तो हाउ टू नो दैट? तो आप इन दोनों में से कोई भी ऐप आप एक अपने एंड्रॉयड फोन पे इंस्टॉल कर लीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना आपको।
यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, ओके, और आपको इस तरह की डिटेल्स मिलेगी. यू विल सी दैट हाउ मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू योर वाईफाई. You can check that if you have 5 devices and you can see that you have 5 devices in your house but 10 devices are connected, it means your Wi-Fi has been hacked. Somebody is using it without your permission. ये देखिए जो राइट साइड में दिख रहा जो नेटवर्क स्कैनर है, इसमें थोड़ा ये थोड़ी एडवांस्ड ऐप है, इसमें आपको और बहुत सारी चीजें दिखेंगी, मैक एड्रेस वगैरह दिखेगा डिटेल. और ये जो है दिस इज द थिंग है. So these are two very useful apps. देखिए, this is my Wi-Fi name is Cyber Police Surveillance. Your name also should be strong. अगर आपके साइबर वाईफाई का नाम जो है वो SSID कहते हैं उसको, that is like Oppo for रमेश सुरेश, तो ये तो हैकर्स को वैसे इनवाइट कर लेता है. And I have 4 devices connected. वो 4 डिवाइसेस में को दिखा रहा है, उसके वेंडर्स भी दिखा रहा है कि ये सैमसंग का है, ये इस कंपनी का है. And these apps इसलिए आपके should be on your Android phone. ये आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है because there are many issues with routers these days that can make your router very vulnerable. ये आसानी से हैक हो जाते हैं. ये मैं खुद मेरे साथ ही हो चुका है. मेरे पीछे की ग्राउंड में बैठ के कोई मेरा वाईफाई यूज कर रहा था, एयरटेल का था वो उस टाइम हैकर, सॉरी कनेक्शन मेरे पास जो कॉपर वायर का था. So you should check your Wi-Fi time to time. How to secure your Gmail account? Okay, this is not about Gmail, but it is all about all your accounts. चाहे वो Gmail हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो आपका, वो आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, एनी अकाउंट. उससे पहले आई वांट टू शो यू वन थिंग. देयर आर की स्ट्रोक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर. आप तो सोचते हो कि आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है, यू कैन सी इन द इमेजेस, लेकिन एट द बैक एंड those are basically getting recorded. आपको पता ही नहीं चलेगा. These are very clever software. वो यहाँ वहां तक अपने को हाइड कर लेते हैं कि जहां तक इजीली आपका एंटीवायरस भी नहीं पहुंच सकता. इफ यू हैव अ फ्री एंटीवायरस और सम ट्रायल वर्जन और समथिंग लाइक दैट, तो कभी भी उसको ट्रैक नहीं करेगा. या आपका एंटीवायरस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल. Actually, I prefer that Kaspersky, Bitdefender, and Norton. ये 3-4 हैं. Otherwise, if your antivirus is not good, they can identify this keystroke recording software. जो भी आप टाइप करते हैं, इसी के साइबर कैफे में जाके you need to be very careful. आपको पता लग ही नहीं सकता कि ये है कि नहीं है. Always avoid using public computer. Public computer means that computer which is not your computer. वो चाहे आपके लाइब्रेरी का हो, ऑफिस का हो, साइबर कैफे का हो, ऑल दोज आर पब्लिक कंप्यूटर्स. ये सॉफ्टवेयर कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है. एंड व्हेनेवर यू विल एंटर योर जीमेल और ये पासवर्ड, कुछ भी आप एंटर करते डिटेल उसका कैप्चर हो जाएंगी. हाउ स्ट्रॉन्ग योर पासवर्ड इज. आपने सुना होगा कि योर पासवर्ड शुड बी 8 to 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग. इट शुड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक सिंबल्स, अपर केस, लोअर केस. आप 100 कैरेक्टर्स का कर लो तो रिकॉर्ड ही हो जाना है, तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? सो वेयर इज द सिक्योरिटी? चलो इस पे हम बाद में आते हैं. these are advanced key loggers, advanced key recording software. These are not just key recording software. ये कहीं भी आपका माइक, आपका वेबकैम, आपका स्क्रीनशॉट जो आप वेबसाइट खोल रहे हो, चैट मैसेज, एवरीथिंग इट इज रिकॉर्डिंग. और ये इंस्टॉल कैसे होते हैं? वैसे ही जब हम लिंक्स पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू विन अ फ्री ट्रिप टू गोवा, क्लिक हेयर टू विन एन आईपॉड, क्लिक हेयर टू विन एप्पल i12. तो रैंडम लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना आपने. जब भी क्लिक करोगे तो इट कैन एंड क्लिक हियर टू स्कैन योर एंटीवायरस विद स्कैन योर कंप्यूटर विद फ्री एंटीवायरस. दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग. इस पे जब भी क्लिक करोगे तो आपका कुछ ना कुछ इस तरह की चीज इंस्टॉल हो जाएंगी. तो की रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब अपने जीमेल यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया तो आपका तो वो साइबर कैफे वाला खोल लेगा उसके बाद आपको जाने के बाद. सो देयर इज कांसेप्ट ऑफ 2-step वेरिफिकेशन और मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन और 2-factor ऑथेंटिकेशन. एक ही चीज है सभी कुछ. इसमें यह कुछ नहीं. दिस इज
like you will attaching your mobile phone number with your account. So whenever you will enter username and password, you will get a verification code on your mobile phone, and along with the password you need to enter that code. Only then your account will open. अब आपका यूजरनेम पासवर्ड साइबर कैफे में कैप्चर हो गया, ठीक है। अब जब भी वो अगर वो उसको ओपन करने की ट्राई करता है तो वेरिफिकेशन कोड कहाँ आएगा? आपके मोबाइल फोन पे, एंड यू कैन that person cannot open your Gmail and you will also come to know that it has been hacked क्योंकि आपको वेरिफिकेशन कोड आ रहा है. So do implement this two-step verification everywhere. और आपके पास हैकिंग से बचने का कोई मेथड नहीं है. हैकिंग इतना आजकल अकाउंट्स इतने हैक, मुझे इतनी कॉल्स आती है ना डेली, और मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल दे डोंट हैव दिस टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन, क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, हर बार हमें वो कोड एंटर करना पड़ता है. बट दिस इज वर्थ इम्प्लीमेंटिंग इट, स्पेशली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स. आई विल एडवाइस कि अपने जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आपके अकाउंट है, दिस ऑप्शन इज एवरीवेयर. 2014 में ये फेसबुक में नहीं थी, उसके बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है ये, उसके बाद ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है. तो डोंट गो फॉर कन्वीनियंस, इसको आप इम्प्लीमेंट कर लो एंड यू विल बी 80% सेफ. कभी लगता है कि हमारा जीमेल कोई पढ़ रहा है, हमारा अकाउंट हैक हो गया है जीमेल का, हाउ टू फाइंड आउट? अपने इनबॉक्स में जाओ, नीचे एक लिंक दिखेगा डिटेल्स, कभी किसी ने क्लिक किया यहाँ पे? मैं कल नहीं किया होगा. ओके, मैं क्लिक करता हूँ. चलो, मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर. व्हाट आई विल गेट इज लास्ट 10 लॉगिन डिटेल्स. ठीक है, उसमें टाइम भी आ रहा है और आईपी एड्रेस भी आ रहा है. अब आप देख सकते हो कि एट 12:01 PM I was not at my home or I did not access this email, my Gmail. How come it is showing that it has been accessed? It means your Gmail has been hacked. उसके साथ आईपी एड्रेस भी आ रहा है. नाउ यू थिंक, अब क्या करोगे? आईपी एड्रेस आ रहा है आपके पास, हाउ विल यू फाइंड द पर्सन? थोड़ा सा पीछे जाओ आप, अपनी इस जो मैंने स्लाइड्स में बताया था. यू विल गो टू द साइट whatismyipaddress.com. वहाँ पे कहाँ पे क्लिक करोगे? आईपी लुकअप के ऊपर. वहाँ पे ये अपना आईपी एड्रेस एंटर कर दोगे जो आपने फाइंड आउट किया है, एंड इट विल शो यू द लोकेशन कि ये कौन सी कंट्री से या कौन सी सिटी से ये आपका अकाउंट जो है वो हैक हुआ है. फ्री वाईफाई होटल्स में, सीसीडी में, बहुत जगह पे, हर जगह ही एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई मिलता है, हम यूज करते हैं. हमें लगता है कि हम इस तरह से सिक्योर कनेक्शन जो है उसको यूज कर रहे हैं. बट व्हाट हैपेंस इज देयर इज वन इन बिटवीन. इसे मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं. आप इसे गूगल में सर्च भी कर सकते हैं. दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ अटैक कि somebody in between is there which is impersonating you. जो आपको लग रहा है कि आप साइबर कैफे से कनेक्टेड हो और साइबर कैफे वाले को लग रहा है कि वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन ये बीच में somebody is getting your details. थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, बहुत तरीके हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट कॉमन वे. ये रियल एक्सेस पॉइंट है, ठीक है. कैफे मान लीजिए एक साइबर कैफे है CCN, ठीक है, उसने अपना, उसका ये रियल एक्सेस पॉइंट है, उसका पासवर्ड है कैफे वाईफाई. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक हॉटस्पॉट बना लेता हूँ वहाँ जाके पास ही, और उसका भी कैफे वाईफाई रख लेता हूँ पासवर्ड में, और उसका सिग्नल जो है आई विल हैव इट वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल. अब जब भी कोई यूजर आएगा दैट विल ऑटोमेटिकली विल गेट कनेक्टेड टू माय हॉटस्पॉट, और उसका पासवर्ड भी वही है, एंड ही विल नेवर सस्पेक्ट कि वो जो है वो उससे रियल से एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, वो मेरे जो है हॉटस्पॉट है उससे कनेक्टेड है. सो दिस इज कॉल्ड इवल ट्विन मेथड. इवल ट्विन मेथड. मेथड्स और भी बहुत हैं, ARP पॉइजनिंग है, और भी हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड.
तो इसके लिए VPN के बारे में आपको सबको पता होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आजकल उतना ही जरूरी हो गया जितना एंटीवायरस। एक तो अनोनिमिटी देता है आपको, यू कैन चेंज योर IP एड्रेस थ्रू दिस, और एक आपके डाटा को एक टनल देता है, एनक्रिप्ट कर देता है। कोई आपका डाटा नहीं देख सकता, पढ़ सकता है उसको। It is safe from hackers, it is safe from governments, it is safe from service providers. वो सिर्फ टनल दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। अगेन आई यूज Kaspersky VPN। इसके बिना कभी भी फ्री वाईफाई से आप कनेक्ट मत हो। अगर बहुत जरूरत है तो अपना मोबाइल डाटा यूज कीजिए, डू नॉट यूज फ्री वाईफाई साइबर कैफे में। इसमें मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, मैंने रेड तैयार की थी। आई होप यू विल एबल टू हियर। I'll restart it. This is a folder. Sir, you are not audible, I think. Hello, Arun sir. Yes, sir. You are Hello. not. Your हाँ जी, hello. हाँ जी sir. Hello. हाँ जी sir. Am I audible? Yes sir, yes sir. Am I audible, sir? Yes sir, you are audible now. Hello. Am I audible? Yes sir, you are audible. Am I audible, sir? Sanjay, sir. Yes sir, your voice is audible now. एक मिनट सर। अच्छा। Now, am I audible, sir? Okay. So I will show you this demonstration because this is very important from my point of view, because very few people are aware of this. I will show you a folder hacking. This is the C drive. This is empty folder. There is nothing inside it. And then let us suppose that this is scenario of a C drive. He has come asking for a printout. तो मेरे को अपनी पेन ड्राइव दी थी, तो I now attach his or her pen drive to my CPU. सिंपल अटैच करूंगा मैं और कुछ नहीं। दिस आई अटैच्ड। प्रिंट आउट निकाल, और प्रिंट आउट निकाल के
पेन ड्राइव वापस दे रहा हूँ। आई नेवर गेव एनी कमांड कॉपी और मूव द फाइल, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के उसको now again I will contents of the same जो कि पहले की बिल्कुल now these files are from where these files have come. ये फाइल उस पेन ड्राइव की है जो कि मैंने अपने लैपटॉप पे लगाई। Sir, screen is only PPT is visible to us. वेरीफाई दैट मैं वो पेन ड्राइव के कंटेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि 3 PDF है और फाइल है। अब मैं इसको क्लोज करके आपको पेन ड्राइव के कंटेंट्स जो है वो दिखाता हूँ। ये पेन ड्राइव है, मैं अटैच करता हूँ and then I will show you contents. ये देखिए ये कंटेंट्स हैं, वही 3 फाइल इसमें है और 2 JPG जो है इमेज फाइल जो है वो इसमें है। Sir, sorry to interrupt you. Your screen is not visible. They are very deadly software. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हमारे होता क्या कि बेसिकली बच्चे जो हैं जनरली यंगस्टर्स हैं, प्रिंट आउट घर में कलर प्रिंट आउट प्रिंटर नहीं होता, कलर लेजर नहीं होता, दे गो टू साइबर कैफे टू गेट द प्रिंट आउट। एक फाइल प्रिंट आउट की होती है, बीच में 50 सेल्फीज अपनी होती हैं उसकी, और फंक्शन घर के फंक्शन की फोटोग्राफ्स होती हैं और अपनी वीडियोज होती हैं। ऑल दोज गॉट लीक्ड आउट थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। Now you can see the vulnerability in the severity. So always have 2 pen drives, one for your personal data जो भी आपकी फोटोग्राफ्स हैं वो है, और सेकंड फॉर योर डॉक्यूमेंट जिसका आपने प्रिंट आउट लेना है, जो आपने कभी किसी कंप्यूटर पे लगानी है। डोंट मिक्स ऑल दीज थिंग्स। हाँ, प्रॉब्लम तो यह है, अगर एक फाइल भी है आपके पास जिसका प्रिंट आउट निकालना है, लेट अस सपोज दैट्स अ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आपने अपनी सेल्फीज तो मूवीज इमेजेस तो अलग कर ली है, बट एक फाइल तो है ना, वो तो कॉपी हो जाएगी उसके। हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट? एक तो अपनी मेल से यूज करो अपने फाइल, that type of file you should have in your email and then access from your email, get the printout from there. Otherwise create a password protected zip file. आप zip file बनानी सबको आती है, उसमें पासवर्ड डाल दो, so that even that file gets copied, that person won't be able to open it because that is password protected. Cyberbullying, cyber stalking. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक द पर्सन, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया साइट जो है उसमें आप उसको रिपोर्ट कर दो। ईच एंड एवरी सोशल मीडिया साइट हैज रिपोर्टिंग सेक्शन, जहाँ पे आप अब्यूसिव अपने मैसेजेस या पिक्चर जो है वो आप उसको कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एविडेंस। ये बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट कैच द ऑफेंडर until and unless you have a digital evidence. आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। रिपोर्ट करने के टाइम ये पूछेगा कि स्क्रीनशॉट दो, ये उस चीज का URL बताओ, उस चीज का आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या रिपोर्ट करोगे आप? जब भी कुछ इस तरह का मैसेज आता है आपको मे बी ऑन द व्हाट्सएप, उसका इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लो। अगर आपके पास आपको मॉफ्ड फोटोग्राफ अगर दिखती है उसके वेबसाइट के ऊपर, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। एक एक्सटेंशन आती है, आप नोट कीजिए, दैट इज वेरी यूजफुल। अब मुझे टाइम मिला तो मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा। निम्बस, NIMBUS, निम्बस।
अब मान लो आपके यू आर सीइंग योर वीडियो ऑन ए ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट और योर फोटोग्राफ ऑन वेबसाइट एंड दैट वेबसाइट इज 10 पेजेस लॉन्ग, कितने स्क्रीनशॉट लोगे, कंटिन्यूटी नहीं आएगी आपकी. सो विद दैट एक्सटेंशन यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ the complete web page 10 pages, or you can simply scroll through those pages and it will create a single jpg file, image file for that. So you should be ready to extract the digital evidence from the incident. अब आपको इंसिडेंट जो है रिस्पॉन्डर है वो भी बनना है, बिकॉज ये आई एम टेलिंग यू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि आप 70% सेफ हो या 80% सेफ हो, 20% पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन बी कंप्रोमाइज्ड. ये सिम क्लोनिंग, जो आपका सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड हैकिंग, सिम कार्ड क्लोनिंग के थ्रू ये जो है दैट कैन बी डन, एंड और भी बहुत तरीके हैं. तो यू शुड बी रेडी फॉर द डिजिटल एविडेंस जो है हर एक जगह मिलते हैं. मैं आपका इंसिडेंट एक्टिवेट करता हूँ. मान लीजिए चेन स्नैचिंग होती है कहीं पे और दैट वाज वेरी आइसोलेटेड प्लेस, कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई बाइस्टैंडर नहीं है, कोई साथ में नहीं था, एंड द 2 पर्सन केम ऑन ए बाइक, चेन स्नैच की और चले गए. अब डिजिटल एविडेंस कहाँ पे है, वो कैसे रिपोर्ट करेगी, क्या पुलिस कहाँ से फाइंड आउट करेगी? इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट जिस आदमी ने वो स्नैचिंग की है उसके पास एक फोन होगा डेफिनेटली, और जो फोन है वो जरूरी नहीं कि स्मार्टफोन हो, वहां पे जीपीएस है, नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज नोकिया 1100, कुछ भी नहीं है उसमें, बट दैट फोन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द टावर. उससे कॉन्टिन्यूसली उसको सिग्नल मिल रहे हैं, एंड दैट टावर इज रिकॉर्डिंग ऑल द फोन नंबर्स कनेक्टेड टू दैट टावर. अब एक पैटर्न होता है कि उस दिन वो 3-4 स्नैचिंग करते हैं, उसके बाद दे गो अंडरग्राउंड फॉर फ्यू डेज. तो व्हाट पुलिस डिड वाज, एक्चुअली उसने वो पैटर्न फाइंड किया कि वो वाला नंबर जो है, जहां मान लीजिए दैट वाज 14th ऑफ जैन में जितनी भी स्नैचिंग हुई है उस टावर पे कौन कौन से नंबर थे उस टाइम, और वो जो कॉमन नंबर था उसमें से क्या निकला कि वो कॉमन नंबर निकला जहां जहां स्नैचिंग हुई है उसके नियर जो भी नियर बाय टावर थे उसमें वो नंबर जो है समहाउ इट वाज देयर एट प्रेजेंट एट दैट टाइम, एंड देन पर्सन zeroed into that person. So digital evidence is there always. एक और बताता हूँ मैं बात आपको. ये पीछे रिसेंटली होता है इंश्योरेंस, 75-year-old पर्सन, उसने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई थी. देन अब उसके बाद उसके घर में आग लग गई, तो बड़ी मुश्किल से उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे किया, उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एंड देन ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, जो कि ज्यादा हाइट पे नहीं थी, एंड उसके बाद उसने अपना इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया कि मेरे ऐसे आग लग गई थी, एंड आई विद वेरी डिफिकल्टी आई गॉट एस्केप फ्रॉम दैट. तो सब कुछ जेन्युइन था, एवरीथिंग वाज ठीक है, एंड पर्सन वाज वेरी ओल्ड, ही वाज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, पेसमेकर था उसके हार्ट में. पेसमेकर का होता है कि बेसिकली जब हार्ट बीट स्लो होनी शुरू हो जाती है तो डॉक्टर्स पुट ए पेसमेकर ताकि वो ऑप्टिमाइज हो जाए, आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट रहे, अपने लेवल पे रहे, तो वो रिकॉर्ड करते रहती है हार्ट बीट. अब जब क्लेम लेने की बारी आई तो वन इन्वेस्टिगेटर के दैट ही गॉट सस्पिशियस देयर समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो एट दैट सेम टाइम जब इंसिडेंट हुआ तो सब कुछ तो जल गया, बट ही वाज एबल टू प्रोटेक्ट सम डॉक्यूमेंट्स. उसने जंप किया, बाहर आया और वो बच गया, बट देयर वाज नो प्रूफ, कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था. लेकिन देन वन इंटेलिजेंट पर्सन दैट ही केम टू अ वेरी इंटेलिजेंट कंक्लूजन कि उसके हार्ट में एक पेसमेकर है, और अगर उसमें आग लगी है, उसने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए है, विंडो से जंप किया है, इसका मतलब है कि उसका बीपी राइज किया होगा, उसकी हार्ट बीट्स राइज की होंगी, उसके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो सारे जो हैं वो उस टाइम अब नॉर्मल हो गए होंगे, एंड दे गॉट दैट पेसमेकर इंस्पेक्टेड बाय डॉक्टर्स. उसमें कुछ इस तरह का इशू दिखा ही नहीं कि उसकी हार्ट बीट्स था, उसका हार्ट रेट जो है वो उस टाइम इंक्रीज हुआ था, एंड देन दे केम टू कंक्लूजन दैट इट वाज एन आर्सन, एंड कि उसने आग खुद लगाई थी, that was not fire broken. So digital evidence is always there. Whenever something happens, just close your eyes for 2 minutes and
यू विल कम टू नो कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं जो कि डिजिटल एविडेंस को कैप्चर कर रही हैं। मे बी अलेक्सा है आपका, आपके मोबाइल फ़ोन में जो गूगल असिस्टेंट है, कहीं ना कहीं वो डिजिटल एविडेंस जो है वो हमेशा रहता है। तो अगर मॉक फोटोग्राफ कभी आप देखते हो, वीडियो देखते हो, तो डरना नहीं है, बिकॉज दे आर फोरेंसिक टूल्स, दे कैन प्रूव दैट। अभी मैंने परसों न्यूज देखी थी, 11th क्लास गर्ल, शी कमिटेड सुसाइड बाय जस्ट सीइंग द मॉक फोटोग्राफ्स ऑन द वेबसाइट। या बिकॉज इट कैन बी प्रूव्ड दैट ये फोटोग्राफ्स मॉफ्ड हैं, किस किस एंगल से कहाँ से मॉफ्ड है वो भी हो जाता है, पता लग जाता है, बिकॉज दे आर फोरेंसिक टूल्स फॉर दैट। अब ऐसा कि अब फेसबुक की सिक्योरिटी, अब देयर आर 190 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। सो थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा सा रीड कीजिए। ताकि टाइम ज्यादा हो जाएगा इस बार हमारा। इन ईच एंड एवरी केस देयर वाज वन कॉमन थिंग कि उन्होंने फेसबुक पे अपना स्टेटस डाला था, फोटो अपलोड की थी, चेक इन किया था, एंड इट इज सिंपली लाइक इनवाइटिंग हैकर्स कि हम घर पे नहीं है, हमारा घर खाली है, प्लीज कम डू वट एवर यू वांट टू डू। सो स्टेटस अपलोड करते टाइम आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी भी कहीं जाके चेक इन नहीं करना है, कभी स्टेटस अपलोड नहीं करना है। हम सभी करते हैं, बट इट कैन लीड टू वेरी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। जब वापस आओ तब फोटोग्राफ्स अपलोड करो, जो करना करो, बट स्टेटस मत डालो आप। And 78% of the convicted prisoners, this is a survey, they confess they used to target properties by taking clue from the Facebook and other social media sites. So these are all facts. इस तरह के स्टेटस डालते हैं, अपना स्टेटस फ्रेंड्स पे रखो, पब्लिक पे मत रखो। सिक्योरिटी लॉगिन में जाके अपना तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करो, और यहाँ पे आप चेक करते रहो वेयर यू आर लॉग्ड इन। अगर आप ऐसे प्लेस से लॉग्ड इन हो जहां आप कभी गए नहीं, तो इट मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग। पासवर्ड कैप्चरिंग के बहुत मेथड्स हैं। फिशिंग अटैक्स में बता चुका हूँ, पासवर्ड रिकॉर्डिंग बता चुका हूँ। ब्रूट फोर्स में होता है कि सभी ऑल कीज, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड दैट विल बी ट्राइड अगेंस्ट योर पासवर्ड। एक पासवर्ड ऐसा एक कॉम्बिनेशन ऐसा निकलेगा जो आपका पासवर्ड होगा, एंड दैट यू आर ब्रेक योर सिक्योरिटी। डिक्शनरी में ऑल वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी आर बेसिकली ट्राइड अगेंस्ट द पासवर्ड। ब्राउजर में पासवर्ड कभी मत सेव करो। Rules to form a strong password. I think all of you know, you are not children. But question remains the same. अगर की लॉगर लगा हुआ है, की स्ट्रोक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो वो आपका कैप्चर हो जाएगा, and then there will be only 2-step verification which will protect you. इतनी इमेजेस हैं, इतने वीडियोस हैं ऑनलाइन, देयर इज वन गोल्डन रूल टू प्रोटेक्ट इट अकॉर्डिंग टू मी, कि उसको वाटर मार्क कर लो आप। सभी को हम मॉनिटर नहीं कर सकते, 10-10 सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो अकाउंट होते हैं हमारे, इतनी फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, कहाँ कहाँ आप रिकॉर्ड रखोगे। और फोटोग्राफ्स मॉफ्ट हो जाती हैं इजीली। एआई, बिकॉज नाउ एआई इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद द साइबर क्राइम। ऐसी सी साइट्स हैं, लाइक यू, इफ यू सर्च इन द गूगल डीप फेक्स, यू विल कम टू नो अबाउट द फैक्ट्स। 2 मिनट में आपकी एक मॉफ्ट फोटोग्राफ्स, मॉफ्ट वीडियो तैयार हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि वो आप हो या देयर इज सम पॉर्न आर्टिस्ट इज देयर।
दिस इज वाटरमार्क फोटोग्राफ। ऐसे ही आपने वाटरमार्क करनी है अपनी फोटोग्राफ को। या आप नोट कर सकते हैं कि लिंक्स, दिस ऐप इज रियली पावरफुल फोटो वाटरमार्क। इसमें अपने सिग्नेचर, QR कोड विद बैकग्राउंड, आप कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। दिस इज फ्री। उसके बाद उसको आप अपलोड करो। और ये अच्छे, दीज आर गुड लिंक्स एंड एप्स। इसमें यू डोंट नीड टू अपलोड ईच फोटोग्राफ टू watermark। अपना कंप्लीट फोल्डर आप अपलोड कर दो, इट विल बी मार्क द होल ऑल फोटोग्राफ्स, मे बी द 100 or 200 in the that folder will get watermarked in a few seconds। चलो, ये तो मोबाइल सिक्योरिटी इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ लीजिए, आपको यू विल गेट टू नो अबाउट द मेन थिंग्स। सॉरी, आप ये पढ़ते जाओ, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मेरा एक रिलेटिव है, फोर्टिस में एडमिटेड है। तो मैं उनको बता रहा था कि उसको कि ऐसा कि मेरे जो रिलेटिव है ये फोर्टिस में है, बस इतना सा मेंशन किया। उसके बाद दूसरी बात है कि फोन खत्म हो गया बात। उसके बाद मेरे को 10 मिनट बाद फोर्टिस से कॉल आ गई कि आप जो है, ये हमारे बेसिकली OPD टाइमिंग्स है, दिस इज अवर इमरजेंसी नंबर, यू कैन कॉल एम्बुलेंस एनी टाइम। बट हाउ द हेल दे न्यू दैट आई टॉक्ड अबाउट फोर्टिस ऑन द फोन? When we give permission to app to use our mic and camera, that means we are giving them everything। अब उस ऐप की अब टाई अप किस कंपनी के साथ है वो हमें नहीं पता। मे बी फोर्टिस का जो टाई अप है वो किसी कंपनी के साथ था, ऐप के साथ था, एंड दैट ऐप इन्फॉर्म्ड कि इसने फोर्टिस का नाम लिया है और फोर्टिस वालों ने मेरे को कॉल कर दी। आपके कमरे में स्मार्ट टीवी होते हैं, दे हैव माइक एंड कैमरा, उनको ऑफ करके रखो, because things are getting nastier day by day, murkier day by day। आप दुनिया का सबसे सिक्योर कैमरा ले लो, CCTV कैमरा ले लो, लेकिन वो तब तक सिक्योर नहीं होगा जब तक आपका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड चेंज नहीं होगा। और वो कभी भी चेंज नहीं करते जो इंस्टॉल करते हैं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ योर साइबर सिक्योरिटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड्रॉइड फोन मिसिंग, आपका मिस हो जाता कहीं पे, तो बस हम जनरली जीमेल से लॉगिन रहते हैं, कुछ नहीं करना, आपने बस ये लिंक टाइप कर देना है एंड आपका फोन जो है आपको डिटेल मिल जाएगी कहाँ पे है। उसको आप अगर वो म्यूट पे भी है उसको भी रिंग कर सकते हो। अगर मैं मैप्स टाइमलाइन देख रहे हो ना, मैप्स टाइमलाइन, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे को एग्जैक्टली शो करेगा कि किस हाउस नंबर में पड़ा हुआ है। अब डेबिट कार्ड हमारी पॉकेट में होता है, लेकिन मैसेज आ जाता है कि 25,000 हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। हाउ डू दिस थिंग हैपन? ये बेसिकली स्किमर्स होते हैं। स्किमर्स में दिस इज द रियल कैप्चरिंग स्लॉट, दिस इज द कैप्चरिंग डिवाइस, ये उसके ऊपर फिट हो जाएगा। जब भी कोई कार्ड डालेगा, कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्राइप में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिकॉर्ड हो जाएगी। अब हैकर को पिन भी चाहिए, देयर फॉल्स पिन पैड ओवरले। देखिए ये फिट हो रहा है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। आप पिन एंटर करोगे, पिन एंटर हो जाएगा, बट इट विल गेट रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम। अब वो भी, अब हैकर के पास मैग्नेटिक स्ट्राइप की डिटेल्स आ गई, आपका पिन भी आ गया, ये देखिए कंप्लीट सेटअप है। और ये जो ब्लैंक कार्ड्स हैं, ये आप दिल्ली जाओगे तो 2-2 रुपए में मिलते हैं। और जो क्लोनर्स हैं, क्लोनर्स मीन्स जो डुप्लीकेट कार्ड तैयार करते हैं, दोज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। अब अलीबाबा की साइट चेक करो, वहां पे क्लोनर्स भी मिल जाएंगे आपको। और वो क्लोनर्स और ब्लैंक कार्ड से आपका कार्ड जो है तैयार हो जाता है, एंड देन ट्रांजैक्शन हैपन्स।
जो डिटेल्स स्किमर से आती हैं दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर वायरलेसली, वो यूएसबी ट्रांसफर हो जा सकती है, यूपी भी ट्रांसफर हो सकती है, वहाँ पे कार्ड तैयार होता है और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है आपके अकाउंट में से। दैट्स हाउ दीस थिंग्स हैपन। और ये चीजें जैसे स्किमर लगा हुआ तो टेम्परेली फिक्स्ड है, उसको लेफ्ट राइट आप स्लाइड करोगे तो वो बाहर आ जाएगा। जब भी आप एटीएम में जाओ तो मेक इट अ हैबिट कि जो उसको है लेफ्ट राइट जो है उसको या उसको पुल करके देखो जहाँ पे हम कार्ड डालते हैं। एंड ऑलवेज कवर योर पिन विद योर हैंड। अपने कार्ड रिप्लेस कराओ, इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग कार्ड गेट द चिप बेस्ड कार्ड, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू क्लोन। मैं ये नहीं कहता कि क्लोन नहीं हो सकते, बट वेरी डिफिकल्ट टू क्लोन, क्योंकि ये यूनिक नंबर भेजते हैं विद एवरी ट्रांजैक्शन, तो समथिंग लाइक दैट, सो दैट क्लोनिंग डजंट वर्क हियर। वायरलेस कार्ड्स आ गए हैं, वे यू जस्ट नीड टू होवर योर कार्ड, और उतनी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, वायरलेस रीडर्स भी आ गए हैं, कार्ड आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है और ये जो ये देखिए ये कार्ड है उसके वो उसमें ब्रीफ केस में है, ये द हैकर एंड उसके रीडर जो है वो उसकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, एंड दैट कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड। तो इसके लिए एंटी स्कैन कार्ड स्लीव्स आती हैं, उसमें अपना कार्ड रखो। एंड वन टिप, दिस इज वेरी यूजफुल, अपना सीवीवी उस पे से इरेज कर दो, स्क्रैच कर दो, उसको कहीं और नोट कर लो, बिकॉज इफ यू by chance drop your card somewhere or your purse or your wallet gets stolen, nobody will be able to use your card, because if he wants to use it in the ATM he doesn't know the pin, and if he wants to use for the online shopping he doesn't have the CVV, and until unless you enter the CVV transaction does not get completed। अब आप मेरे से पूछोगे सर OTP भी तो आता है, अगर CVV है भी है तो वो अगर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करता है तो हमारे पास OTP आएगा। ये OTP सिर्फ मैंडेटरी है इन इंडिया और इन फ्यू कंट्रीज। आप कभी गूगल स्पेस खरीद के देखो, आप जो अपना जीमेल में यूज करते हो गूगल स्पेस, उसमें आप ट्रांजैक्शन करके देखो, यू वोंट गेट द ओटीपी। आप ग्रामरली सॉफ्टवेयर परचेज करके देखो, दैट इज अगेन यूएस बेस्ड, यू वोंट गेट द ओटीपी, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है। ओटीपी जो है जो दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सो डोंट डिपेंड ऑन द ओटीपी, प्रोटेक्ट योर कार्ड। अपनी आइडेंटिटी को हमेशा सिक्योर करो, जब भी आपने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी देनी है उसको प्रॉपर्ली मार्क करके दो, सो दैट इट कैन नॉट बी मिसयूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द लास्ट सेक्शन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। यूपीआई ऐप, जीपे, फोन पे, OLX, पेटीएम, OLX पे जितने फ्रॉड्स होते हैं ना 99% ये जो यूपीआई ऐप्स के थ्रू होते हैं। थोड़ा सा पढ़ के देखिए आप। एक्चुअली QR कोड्स है क्या? स्लाइड में सुनिए, because QR codes are basically it looks to you like a matrix of black and white boxes, but these are very dangerous because it can hide anything. It can lead you to a website, malicious website, a phishing website. It can install a malware on your computer. Anything can be done through these QR codes. और जनरली OLX में मैंने देखा, मैंने उस दिन सोफा डाला था अपने दिवाली के दिनों में सेल के लिए, तो मुझे इतने सारे मैसेज आए without any bargaining. They said, okay, we want to buy your sofa, I am sending you QR code, you just scan it and you will get your payment. अगर मैं स्कैन कर लेता तो मेरा पूरा का पूरा जीपे का गूगल पे जितना भी अकाउंट है उससे लिंक्ड है, वो पूरे का पूरा जो है वो खाली हो जाता। सो नेवर एवर स्कैन ए QR कोड विच इज सेंड टू यू। ठीक है, अगर किसी सुपरमार्केट में लगा है, आपको पता कि सुपरमार्केट आज भी यहाँ है कल भी यहाँ है, तो यू स्कैन इट, बट अदरवाइज फ्रॉम द अनट्रस्टेड सोर्सेज ऑलवेज अवॉइड। 90% जो इश्यूज हैं वो
QR कोड से होते हैं। आप कितनी भी प्रिकॉशंस ले लो, फिर भी यूपीआई ऐप्स के जो हैं आप हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज दिस इज पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। इसमें बैंक ही नहीं आता, या आपने सिर्फ अपने पेमेंट करनी है, आपके अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे अकाउंट में चली जानी है। तो अपना जो है मेन सैलरी अकाउंट इससे लिंक करके मत रखो। आई हैव अ सेपरेट अकाउंट, उसमें कभी भी मैं 8,000 या 9,000 से ज़्यादा रखता ही नहीं हूँ वैसे, कि अगर मेरे हैकिंग हो भी जाए तो वही अकाउंट मेरा जो है वो ऐप खाली होगा। और मैं सभी यूपीआई ऐप्स, जीपे, फोन पे, भीम, पेटीएम, जितने भी है सभी यूज करता हूँ मैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू हैव टू रिसीव द मनी, यू डोंट नीड टू एंटर द पिन। पिन आपने तभी एंटर करना है जब यू हैव टू डू द ट्रांजेक्शन, जब आपने पेमेंट करनी है। बहुत बार फ्रॉडस्टर्स ऐसे होते हैं कि आपको बोलेंगे कि ओके आपने, दे वांट टू मेक द OLX पे उन्होंने आपकी चीज खरीद ली है, एंड दे विल से दैट ओके आई एम सेंडिंग यू QR कोड और अ लिंक। तो इस पे क्लिक करके आपने सिर्फ अपना पिन एंटर करना है और आपको पैसे मिल जाएंगे आपके। बट रिमेंबर, यू आर रिसीविंग द मनी, नॉट सेंडिंग द मनी, एंड व्हाइल रिसीविंग द मनी यू डोंट नीड टू एंटर द पिन। अगर आपने पिन एंटर कर दिया तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, आपके जो है 220,000 जितना भी अमाउंट है दैट विल गेट डेबिटेड। तो यूपीआई कोड में कभी भी आपने लिंक पे क्लिक नहीं करना, QR कोड को स्कैन नहीं करना है। साइबर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो बात ठीक है कि थोड़ा देर लग जाती है साइबर क्राइम पुलिस को फाइंड आउट करने में, बिकॉज सर्वर जो है वो बाहर होते हैं। व्हाट्सएप का सर्वर कैलिफोर्निया में है। अब कैलिफोर्निया वालों से जब से कम्युनिकेट करना, फिर आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हो तो जाती है चीजें, बहुत देर लग जाती है, बट रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। So don't think that if you can do, if it can be done remotely and then you can do it and you will get away. No, never. You know the limit. हमें भी जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होती है तो we should know the limit. हमें क्या परमिशन दी गई है, हमें नेटवर्क में कहाँ तक जाना है, हमें कहाँ नहीं, कौन से कंप्यूटर्स या कौन सा नेटवर्क का पार्ट है जहाँ को हमने वो स्कैनिंग नहीं करनी है, हमें वो टूल्स नहीं यूज करने हैं। तो साइबर आपको, यू शुड नो कि आपकी लिमिट क्या है। अगर आप मान लो एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो डू इट ऑन योर ओन डिवाइसेस। वर्चुअल लैब्स होती हैं, यू कैन क्रिएट वर्चुअल लैब्स ऑन योर कंप्यूटर और उसके ऊपर आप अपने टूल्स ट्राई कर सकते हो। नेवर यूज इट ऑन नेबर्स वाईफाई कि मैं उसको हैक करके देखता हूँ कि होता कि नहीं होता, मैंने जो सीखा वो ट्राई होता कि नहीं होता। डोंट डू दैट, इमीडिएटली यू विल कम अंडर द सर्कल ऑफ साइबर क्राइम। और रिपोर्ट कैसे करना है, मैंने शुरू में बताया था कि लड़की कह रही थी मेरा वो साइबर क्राइम है राइजिंग अगेंस्ट वुमेन। लोगों को पता ही नहीं होता कि रिपोर्ट कैसे करना है। दिस इज अ वन सिंगल प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसमें स्टेट वाइज सभी के ईमेल दिए हुए हैं, रैंक दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो डायरेक्टली don't lose your time. If you think that cybercrime has happened, just pick up the phone, call the person or email the person. स्टेट वाइज आपको डिटेल मिलेगी। मुझे पता है चंडीगढ़ में मिस्टर ओम प्रकाश इज देयर, फोन नंबर इज 2760003। आपके टिप्स पे होना चाहिए ये चीजें सारी, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू लूज द टाइम एट दैट टाइम। उतनी ही चीजें स्प्रेड करती जाएंगी, बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी। वो सभी ISPs को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नाउ ब्लॉक दिस साइट। अगर आपकी मान लीजिए मॉक फोटोग्राफ दिख जाती है तो आप तो खुद कुछ नहीं कर सकते हो, आप रिपोर्ट करोगे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, वेबसाइट को, nobody will take the action, they will take their own sweet time, but they listen to cyber cells, they don't listen to us as promptly as they listen to cyber cells. तो इस साइट को एक्सप्लोर करो। दे हैव ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो अनोनिमसली रिपोर्ट। अगर आपको डर लगता है कि पेरेंट्स को पता लग जाएगा या फिर वो पर्सन रिटेलिएट कर जाएगा, दे आर ऑप्शन दैट वुमेन और चिल्ड्रन दे कैन रिपोर्ट द साइबर क्राइम अनोनिमसली, अपनी आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज किए हुए। दैट वाज द लास्ट सेक्शन। एक फेसबुक का पेज है, इस पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ अपने सारे जो भी साइबर सिक्योरिटी टिप्स हैं जो, एंड दीज आर माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
साइट तो चल नहीं रही है, बट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सेफ साइबर सिक्योरिटी टिप्स। एक हाँ मैं बताना भूला, हिडन कैम्स ये आजकल बहुत न्यूसेंस हुआ पड़ा है। आप होटल रूम्स में जाते हो, आप ट्रायल रूम्स में जाते हो, यू नेवर नो देयर इज हिडन कैम। देयर इज वन ऐप ग्लिंट फाइंडर, आप नोट कर लो ग्लिंट फाइंडर, उसको अपने फोन में डाउनलोड करो। इट वर्क्स इन रेट्रो रिफ्लेक्टिव मोड, आपकी फ्लैश चलनी शुरू हो जाएगी। आप धीरे धीरे एरिया को स्कैन करते जाओ। ट्रायल रूम तो छोटे होते हैं, इजीली स्कैन हो जाते हैं। जहां पे भी हिडन कैम मिलेगा, इट विल बी शोन एज अ ब्राइट सर्कुलर स्पॉट। चाहे वो लाइट एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन आपका मोबाइल फोन थ्रू दैट ऐप इट विल डिटेक्ट इट एज ए ब्राइट स्पॉट। तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे हिडन कैम है। तो लीवरेज द टेक्नोलॉजी, हमारे पास एप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे यूज करना उसको। तो दैट्स ऑल। तो अब वी विल कंटिन्यू विद, आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। Runjik, it was indeed a pleasure to listening to you. You make the things very easy for all of us to understand. And I hope students must have learned a lot. Knowingly, unknowingly, we are doing number of things which later on become very difficult for us. I remember about 20 years earlier when IT Act was passed and we started with the e-commerce issues paper. I used to teach this cyber security and issues related to that. And we introduced the same in number of papers in MCOM and the graduate level also. But in spite of that, what I find out that even the persons who are aware of the situations are not taking the precautionary steps. And that's why the incidents of the cyber attacks and are increasing day by day. And particularly these days during this COVID, when we all of us are moving towards this online educations and the way the e-payment system is becoming popular, we are going towards a digital payment system, and it has become a big challenge for all of us. And I hope that your lecture will help all of us, teachers, students, and all other stakeholders which have learned a lot. They will certainly take precautions so that we all can gain. And sir, I will also request you that once the situation is normal, we'll invite you to our campus, and then we will have a better interactive environment. Today we were having a live events, and because of which we could not have the queries of the students. Actually, we are also experimenting with this new Microsoft Team environment. So we're expecting that more students will be coming. So instead of having a meeting where is a restriction of 250, we went for the live event, only to realize later on that it doesn't have interactive features. But anyhow, the things certain times go out of control. But on the behalf of the management, students, teachers, and myself, we are thankful to you for sparing your times. Thank you a lot, and we will remain in touch. Thank you, sir.